ऑलराइट, आफ्टरनून, कैसे हालचाल? बढ़िया है। लास्ट टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया था, रोटेशनल मोशन का जेई लेक्चर है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में काफी नई 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 चीजें हमने देखी थी। आई होप आपने घर पे जाके सॉल्व किया हो। आज का दिन टॉर्क का, ओके, टॉर्क का, एंगुलर मोमेंटम का। सो आई जस्ट ब्रीफली ब्रश अप द बेसिक्स दैट यू ऑलरेडी नो। यू नो, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वो काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। एक्चुअली टॉर्क इज द इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स इन प्रोड्यूसिंग रोटेशनल मोशन। ओके, एंड डायग्राम एकदम साफ है। ये एक पार्टिकल है P जिसका पोजीशन वेक्टर है r बार, एंड इस पे फोर्स लग रहा है लेट अस से F बार। ओके, एंड ये ओरिजिन है। देन द टॉर्क ऑन दिस पार्टिकल P कैन बी गिवन एज टाउ बार is r bar cross F bar. So very simple formula, tau bar is r bar cross F bar, and इसका magnitude tau is rf sin theta. Do not forget theta is the angle between r bar and F bar, which if you are looking carefully is this angle. बराबर, the angle between the two tails of r bar and F bar, that is your theta. Okay. Alright. और अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे खींचूं और इसको यहां से परपेंडिकुलर मारूं, ये भी थीटा है, तो दिस I'll call this Q. Then this OQ is r sin theta. If you are looking carefully, OQ will be r sin theta. Here OQ is r sin theta, and this OQ is r sin theta is the perpendicular distance between the line of action of force and the reference point. So you can write torque also as torque is F into r sin theta, which is F into OQ, which is force, magnitude of force into perpendicular distance of force, line of action of force, from the reference point. Okay, so this is your equation for torque. Torque is a vector quantity and उसका SI unit होता है Newton meter. So torque is a vector and its SI unit is Newton meter. अच्छा, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बोर्ड में कभी करी नहीं थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सपोज टॉर्क लगा किसी बॉडी पे, पर बॉडी सिर्फ एक एक्सिस के अक्रॉस, किसी एक एक्सिस एक्स या वाई या जेड, किसी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, देन व्हाट इज द टॉर्क इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन? सो टॉर्क इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू टाउ बार डॉट एन कैप। याद रखिएगा, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर along the direction of rotation of the body. Okay, so please, I want you to jot this down. So what will be the torque? Torque will be tau bar dot n cap, where tau bar is the torque and n cap is the unit vector along the direction of rotation of the body. Alright, so please jot this down. I'm moving forward. ये तो एक पार्टिकल पे टॉर्क है। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हो तो व्हाट इज द टोटल टॉर्क? देन द टोटल टॉर्क विल बी टाउ 1 बार प्लस टाउ 2 बार प्लस टक 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 प्लस टाउ n बार. ओके, so that will be the total torque for a system of particles. So for a system of particles, total torque tau bar is tau 1 bar plus tau 2 bar plus tak 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 plus tau n bar, and that is equal to like r1 bar cross f1 bar plus r2 bar cross f2 bar plus tak 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 plus rn bar cross fn bar. That is
tau bar is summation from I equal to 1 to n ri bar क्रॉस fi bar. फिर बात करते हैं कपल की. आई एम श्योर यू नो व्हाट इज अ कपल. Two equal and opposite forces separated by a finite distance. That is what is a couple. And the torque due to couple, any force, magnitude of any force into perpendicular distance between the two forces. I'm sure you don't want me to draw a diagram of the couple, do you? Yes, sir. Do you want me to draw the diagram of a couple? No, sir. Yep. Yes. सर वो टॉर्क इज इक्वल टू टाउ बार इनटू एन कैप वाला एक बार फिर से सर एग्जांपल लेते हैं. Okay. So suppose मेरे पास कोई position vector है. Let me take an example first. Actually, I was going to take it later in the this thing, but अभी कर देते हैं. For example, let us say I have a position vector. Let me take any data. Suppose I have position vector r bar is like say 1 2 3. मैं कोई भी डेटा ले रहा हूँ. And force f bar is 4 5 6. This is meter, this is Newton. And they've asked me find the torque in the direction of 1 by root 3 I cap plus j cap plus k cap. So that is the question. Find the torque in the direction of 1 by root 3 I cap plus j cap plus k cap. Can you see this is the unit vector itself? So ये n cap है. Now tau bar is r bar cross f bar. r bar cross f bar कैसे find होता है? Everybody knows. I cap, j cap, k cap. R bar क्या है? 1 2 3. F bar क्या है? 4 5 6. So I'm going to do this now. ये I cap 12 minus 15 minus j cap 6 minus 3 4s are 12 plus k cap 5 1s are 5 minus 4 2s are 8. Okay, so ये मैंने r bar cross f bar निकाला है. Okay, now as simple as it looks, 12 minus 15 is minus 3 I cap, 6 minus 12 is minus 6, minus plus 6 j cap, and 5 minus 3 is minus 3 k cap. So we have found tau bar as minus 3 I cap plus 6 j cap minus 3 k cap. Now they want us to find torque in the direction of this unit vector. They have given us this unit vector n cap. ये unit vector ही है खुद, अगर आप देख लो. Okay, and अब मुझे torque चाहिए. So torque in the direction, along the direction of this unit vector, अभी मैंने फॉर्मूला दिया था. दिस इज टाउ बार डॉट एन कैप. ओके, आई गॉट टाउ बार रेडी. ये रहा minus 3 I cap plus 6 j cap minus 3 k cap into what is n cap? 1 by root 3 I cap plus j cap plus k cap. ओके, आई एम श्योर डॉट प्रोडक्ट करना तो आता ही है सबको. तो -3 into 1 plus 6 into 1 plus minus 3 into 1 the whole over root 3. Unfortunately -3 minus 6 plus 6 answer is 0. So torque is 0 Newton meter. ये तो ठीक है, बाकी नहीं तो कोई वैल्यू आ जाती. बरोबर, कोई वैल्यू आ जाती. अच्छा, यहां पे ये भी कह सकते हैं कि what will be the magnitude of torque if the body is rotating along z axis. अगर कोई बॉडी z axis के along रोटेट कर रहा है, अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इधर n कैप क्या लोगे? k cap.
के कैप, बिल्कुल। अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है तो यहां यूनिट वेक्टर क्या लोगे, आई कैप। अगर कोई बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है तो यूनिट वेक्टर क्या लोगे, जे कैप। डू यू अग्री? इज दिस अंडरस्टैंडेबल? ऑलराइट, Yes, sir. ओके। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल। अनफॉर्चुनेटली आंसर 0 आया, नहीं तो कुछ आता आंसर, आई एम श्योर। पर ये -6 + 6 0 हो गया, तो ऐसा हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। लेट्स मूव ऑन। सो दैट वाज हाउ द आइडिया वर्कड आउट। फिर रिजिड बॉडी के लिए बात करते हैं। फॉर अ रिजिड बॉडी हम टॉर्क फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। You know, simple equation so far. Torque tau is I alpha, which is very similar to the equation for force F is equal to ma. जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में वो काम टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन में। जो काम मास करता है लीनियर में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ये लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन। So tau is I alpha is a very lovely equation for torque on a rigid body, where I is the moment of inertia and alpha is angular acceleration. Alright, आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बात करते हैं the condition for rotational equilibrium. So condition for rotational equilibrium. भाई, what was the condition for linear equilibrium? Sigma F bar is the condition for linear or translational equilibrium. So similarly, sigma tau bar is 0. This is the About which point? About which point? condition for rotational equilibrium. And as PK rightly says, जब भी हम सिग्मा टाउ बार इज 0 लेंगे तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि अबाउट विच पॉइंट हम लेने जा रहे हैं। ओके, सो यू ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट विच पॉइंट, अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। सिग्मा टाउ बार जब 0 हो तो बॉडी इज सेट टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं एंड नाउ आई थिंक इट्स द टाइम फॉर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, जैसे जो काम फोर्स करता है लीनियर में वो काम टॉर्क करता है रोटेशनल में, उसी तरह जो काम लीनियर मोमेंटम करता है लीनियर मोशन में वो काम एंगुलर मोमेंटम करता है रोटेशनल मोशन में। तो आई डोंट नीड टू ड्रॉ एनी डायग्राम। एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एल बार इज आर पी साइन थीटा। Alright, lovely as it is. And SI unit of L bar भी वेक्टर है। SI unit of L bar, अच्छा, मोमेंटम का क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड। R का होता है मीटर, सो इट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और मच बेटर नोन एज जूल सेकेंड। ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन। ये सिंगल पार्टिकल के लिए है। फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, for a system of particles, बड़ा L bar is L1 bar plus L2 bar plus tuck 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 plus Ln bar. And similarly for a rigid body, can I take this off now? Yes, sir. Similarly for a rigid body, जैसे हमेशा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वगैरह होता है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता, यूजुअली रिजिड बॉडी के मामले में ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। सो फॉर अ रिजिड बॉडी एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन क्या होगा हम फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर अ रिजिड बॉडी एंगुलर मोमेंटम क्या है वी शैल हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम L bar is I ओमेगा बार। जैसा तुम्हारा P बार इज mv बार हुआ करता था वैसे L बार इज I ओमेगा बार। दैट इज योर आइडिया। सो इसको उसमें भी लिख सकते हैं एंड इन अ स्केलर फॉर्म L इज इक्वल टू I ओमेगा,
मच लाइक P इज इक्वल टू mv, सेम। ये 3 है, ये 2 है। अच्छा, ऑल्सो ये बहुत जरूरी इक्वेशन रहने वाला है, याद रखना, मैं थोड़ी देर में यूज करूंगा। ऑल्सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dl बार बाई डी टी इज d बाई डी टी ऑफ i ओमेगा बार, तो इसमें से i बाहर आ गया, d ओमेगा बार बाई डी टी, एवरीबडी नोज इट इज अल्फा बार, so I get dl bar by dt is I into alpha bar. Hey, what is I alpha bar? अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने, tau bar. Very lovely equation this. So the time rate of change in angular momentum is equal to the net external torque applied onto the body. I am taking this off now. So the time rate of change, much like Newton's second law for linear motion, Newton's second law for linear motion was dp bar by dt is f bar. This is dl bar by dt which is tau bar. तो ये न्यूटन के सेकेंड लॉ जैसा ही है, तो you might as well consider it Newton's second law for rotational motion, nothing else. So this is how it works. So the time rate of change in angular momentum is equal to the net external torque on the body. Which brings me to a very important idea. What if tau bar is 0? Is constant. Oh, if tau bar is 0, then dl bar by dt is also 0. अर्थात L bar is constant. So in the absence of a resultant external torque, the total angular momentum of the system remains constant. So in the absence of a resultant external torque, the total angular momentum of the system or of the body remains constant. That is, initial angular mom is equal to final angular mom, and L is what? I omega. So I1 omega 1 is I2 omega 2. So I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इसी वक्त इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, पर इसी वक्त इस्तेमाल करने चाह रहा हूं बरोबर, पर एक और चीज आपको बताना चाहूं, वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और पावर के बारे में बात है। जस्ट कुछ इक्वेशंस है, ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, इससे पहले कि मैं एक ये करूं, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। हमने जो L इज इक्वल टू आई ओमेगा देखा, दैट वाज प्योर रोटेशन। बट व्हाट इफ बॉडी रोटेट भी कर रहा है और लीनियर मोशन भी कर रहा है? इफ बॉडी परफॉर्म्स लीनियर मोशन as well as rotational motion, then the total angular momentum, ध्यान से देखिएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने जा रहा हूं। टोटल एंगुलर मोमेंटम L इज सबसे पहले रोटेशनल, L ड्यू टू रोटेशनल मोशन प्लस L ड्यू टू लीनियर मोशन। एंड रोटेशनल मोशन का क्या है? I ओमेगा बार एंड I अबाउट द सेंटर ऑफ मास, प्लस सर लीनियर मोशन का एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करोगे, है ना? mvr। कैन यू सी दिस?
this contains rotational terms, this contains linear motion terms. All right, so L bar is ICM into omega bar plus MVCM bar into R bar, okay, into R. So this was the total angular moment. I want you to jot this down, please. Kindly jot this down. I'll wait for you. Is it done? Yes, sir. Okay, आगे बढ़ जाते हैं. एंड एज आई सेड, मैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी जानता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, तो उसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी मैं फाइंड आउट कर लूंगा. ओके, सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन मेरे को मालूम है. rotational kinetic energy, and as he rightly said, it is half I omega square. Next comes work done in rotational motion. Linear motion में work done क्या था? Force into displacement. तो यहां पे work will be tau into theta. और अगर तुमको एज अ फंक्शन ऑफ बहुत सारे टॉर्क्स हो, बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट्स, तो इंटीग्रल टाउ डी थीटा. ओके, एंड फाइनली पावर. एब्सोल्युटली. तो यहां पे टाउ बार डॉट ओमेगा बार, दिस इज योर इक्वेशन फॉर पावर. एंड पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी भी रहता है, सो इवन दिस आइडिया विल वर्क. So P is tau into omega. Okay, ये इक्वेशंस को जॉट कर लीजिए और हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं. मैं करने जा रहा हूं अ वेरी लवली न्यूमेरिकल SP9. SP9. Okay, I am taking this off now. I hope you've opened up your books. हम बात कर रहे हैं फ्रॉम अरिहंस मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स बाय डीबी सिंह, और उसमें से रोटेशनल मोशन का चैप्टर में मैं न्यूमेरिकल्स उठाने जा रहा हूं. आई एम लुकिंग एट SP9. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू डू फॉर SP9. रीड द सम फर्स्ट, ट्राई टू फाइंड आउट द डेटा, और वो डेटा को यूज करते हुए, पहले डेटा सही से पकड़ लिया जाए ना, तो सम हाथ में आने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती. लोग अक्सर डेटा ही गलत पकड़ते हैं, फिर कह रहे हैं आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा. पर डेटा तो सही पकड़ ले बेटा, फिर बात करेंगे सारी. ओके, SP9, व्हाट डज इट से? इट सेज अ ग्राइंडस्टोन इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर है, हैज अ रेडियस ऑफ 0.5 मीटर. ओके, and mass is 50 kg. Alright, what torque find करना है, will bring it from rest to an angular velocity omega is 0 से, omega 0 is 0 से, omega is equal to 300 revolution per minute. भाई, is this the right SI unit of omega? No, sir. Radian per second. तो क्या करना चाहिए? रेवोल्यूशन इज हाउ मेनी रेडियन? 2 पाई. एंड 1 मिनट इज हाउ मेनी सेकेंड? 60. 300 by 60 is 5. 5 2s are 10 pi radian per second. एंड टाइम कितना है? 10 सेकेंड. ओके, सारा डेटा मैंने लिख लिया है. अब हाउ डू आई गो अबाउट इट? टॉर्क का कोई इक्वेशन है अपने पास? टाउ इज आई अल्फा. आई है, सॉलिड सिलेंडर है, क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है आपको? mr स्क्वायर बाई 2. वो आई तो मिल गया. अब अल्फा का क्या करेंगे? डू यू नो ओमेगा इज ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी. तो क्या उससे फाइंड आउट कर सकते हैं? चलो फिर शुरू करिए.
वी नो Alpha is equal to omega minus omega 0 by t. एब्सोल्युटली सर, नो डाउट अबाउट दिस. ओमेगा सर जी. सर इसमें वो टाउ की थोड़ी ज्यादा फॉर्मूला का कंफ्यूजन होता है कभी कभी, कौन सी यूज करें, कितनी है? मतलब वो पता नहीं चलता कि कहाँ से कौन सी यूज करें. कितनी है वही तो पूछ रहा हूं, कितनी है? एक है टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, एक है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. मेरे को तीसरी तो कोई याद नहीं आ रही है, दो ही है. अब अगर तेरे को फोर्स दिया है, अगर तेरे को रेडियस दिया है, तो तू आर एफ साइन थीटा यूज कर लेगी. पर अगर तेरे को कोई रिजिड बॉडी दिया हुआ है जैसे सॉलिड सिलेंडर वगैरह और टॉर्क फाइंड करने को कहा है, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा के अलावा क्या यूज होगा? कुछ भी नहीं. बरोबर ना? ओके, सो अल्फा इज ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बाई टी. ओमेगा कितना है? 10 पाई माइनस ओमेगा 0 कितना है? 0 बाई टी. टी इज 10 पाई, 10 सेकेंड. ओ 10 10 कट, अल्फा मिल गया मुझे. पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. एंड नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi of solid cylinder, I is mr square by 2. मास कितना है? 50 kg. एंड रेडियस कितना है? 0.5. मेरी मानो तो 0.5 मत लिखो, 1/2 लिखो, डिवीजन करने में आसानी रहेगी. डू यू अंडरस्टैंड? नहीं तो 0.5 का स्क्वायर करोगे, 0.25 फिर मल्टीप्लाई करोगे, परिस्थिति गंभीर हो जानी. तो 50/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 1/4. सो आई गेट व्हाट इज 50/8. आपको डिवाइड करना आप कर सकते हो, पर मैं एंड में ही करूंगा जो भी करना है. मुझे आई भी मिल गया, अल्फा भी मिल गया. सो टॉर्क टाउ इज आई अल्फा. आई है 50/8 द होल इंटू पाई. ओह, तो 50/8, 8 करीबन 8 6 जा 48, 6 पॉइंट समथिंग, 6.25 है ना, यस सर. इंटू 3.14, 6 3 जा 18, करीबन 20 के आसपास आंसर होना चाहिए. चेक कीजिए, करीबन 20 के आसपास होना चाहिए आंसर, राउंड अबाउट. 19.6 आंसर है, which is quite near to our estimated answer of 20. So this is how it is. आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते. तो मैंने 6.25 और 3.14 करीबन ले लिया and I moved out of there. So that is the idea. I am looking at SP12. SP12 very lovely. SP12 एंगुलर मोमेंटम का आइडिया है ये. अच्छा, इसमें कोई दिक्कत? SP12 देख रहा हूं, एंड अगर आप भी देख रहे हो तो एक आइडिया लगा लो कि क्या कहना चाह रहा है. SP12 आखिर हमसे चाहता क्या है? मैंने एक नजर मार ली थी, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा था वो, और फिर क्या कह रहा है अपने को मालूम नहीं है. जब तक डेटा नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा. तो आओ देखें डेटा. SP12. Okay, a particle of mass m is projected with velocity v. Oh, projectile की बात चली है. With velocity v at an angle theta with the horizontal. Okay, find its angular momentum about the point of projection when it is the highest point, at highest point, and this is about point O. Okay, एक आध डायग्राम ड्रॉ कर ले, अच्छा रहेगा. ये v, ये थीटा, और ये ओरिजिन बॉडी ऑफ मास m. टू ये हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज पॉइंट A. ओके, एंगुलर मोमेंटम मांगा यहां से. भाई आपको एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन मालूम है क्या? क्या मालूम है? पता नहीं क्या कह रहा है.
R bar क्रॉस P bar, इज दैट इट? यस सर, अच्छा, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? V0 cos थीटा, V cos theta. And what is the perpendicular distance? Do you agree? Angular momentum is L is equal to P into R sin theta, where R sin theta is what? Perpendicular distance of P from reference point. ठीक है, ओके, तो L is equal to what is P? M into velocity कितनी है? V cos theta. एंड इस पॉइंट के अक्रॉस इसका परपेंडिकुलर, ये मोमेंटम का वेक्टर हो गया, ये देखो, ये है मोमेंटम का वेक्टर. Isn't this the perpendicular distance h? यस सर, अब कुछ नहीं बचा. आई होप आपको h का इक्वेशन याद हो. मैक्सिमम हाइट, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी, आगे सर आंसर भी आ गया. क्या बात है, क्या बात. सो एम वी क्यूब वी इंटू वी स्क्वायर. आंसर में शायद एक आध गलती हो गया. साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2g. आप चेक करें क्या यही आंसर है. ऑप्शन साइन 2 थीटा दिया हुआ है. ऑप्शन ए में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वो क्यूब करें, एम वी क्यूब. वहां वी स्क्वायर दिया हुआ है, ओके, तो उसको वी क्यूब करें. और उन्होंने अपने को साइन थीटा में दिया हुआ है, कॉस नहीं है आंसर में. ओ, एक काम करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, उसको ऐसे लिखूं, साइन थीटा कॉस थीटा. साइन स्क्वायर को साइन थीटा लिख सकता हूं. एंड मैं और क्या करने वाला हूं, मैं यहां एक ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा. ऐसा करने के पीछे मेरा प्रयोजन यह है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाता है. सो एल इज एम वी क्यूब साइन थीटा साइन 2 थीटा बाई 2 2s आर 4g. चेक दिस आउट. यस सर, SP13 देख रहा हूं. आर यू लुकिंग एट SP13? SP13 says there is a solid sphere, and that is the prime reason why I tell people read the MCQ very very calmly. एकदम शांति से पढ़ना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि कहा क्या है और पूछा क्या है. अगर यही समझ में नहीं आता कि कहा क्या है और पूछा क्या है, तो सब में आगे बढ़ के कोई मतलब ही नहीं है ना. अगर तुमको यही नहीं पता कि जाना कहां है, तो घर से बाहर निकल के करोगे क्या? कुछ नहीं. सो सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रफ सरफेस विद द सेंटर ऑफ मास. ये रहा तुम्हारा सॉलिड स्फीयर, ये रफ सरफेस है, और ये है उसका सेंटर ऑफ मास. लेट्स कॉल इट O. सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी है? VO. बराबर, ओके. इफ द मास ऑफ द स्फीयर इज m, रेडियस इज r, what is the value of angular momentum? L चाहिए of the sphere about the point of contact with the rough surface. Let's call this point as A. Okay, simple as it looks. Angle of अपना angular momentum find कर रहे हैं. Do you agree? बॉडी दोनों मोशन परफॉर्म कर रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है. Did I tell you the total angular momentum is about point A is L rotational plus L linear. ये rotational का कितना होता है? ICM ओमेगा बार, एंड लीनियर का कितना होता है? M. MVCM बार आर. मैं सिर्फ स्केलर की बात कर रहा हूं, तो MVCM into R. Do you know the moment of inertia of a solid sphere? Mass M, radius R, 2/5 mr square. And do they want it in terms of omega or do they want it in terms of velocity? They have asked me in form of velocity. Do you agree V is R omega? So omega is V by R plus M. And what is velocity of center of mass? V0 into R. I think it has suddenly become easy peasy Japanesey. क्या है? 2/5 mr V0
2/5 mv0r plus mv0r, 2 mv0r plus 5 mv0r, 7/5. 7/5 MV0R. Is someone checking the option? Is that a valid option? Yes, lovely, lovely, lovely. All right. So this was SP 13. कोई और है साथ में जो मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं मैं. आई एम लुकिंग एट SP 15 प्लीज. SP 15 ये एक बहुत ही अच्छे तरीके का न्यूमेरिकल है, न्यू स्टाइल ऑफ न्यूमेरिकल्स. A very lovely idea. They have asked me in SP 15 that what would be the duration of the day if the earth suddenly compresses, if the earth suddenly shrinks to 1/64th, 1/64th of its original volume and mass remaining unchanged. Mass remaining unchanged. Do you understand the question? No, sir. Can't understand the question. Absolutely. फिलहाल अर्थ एक रोटेशन कितने टाइम में मारता है? 24 आवर्स. 24 hours. So this is the original duration of the day. एंड हमको नया ड्यूरेशन चाहिए T डैश, कितना घंटा होगा? इफ अर्थ श्रिंक्स, पिचक जाता है to 1/64 of its original volume, मतलब न्यू वॉल्यूम is 1/64 of original volume. मास में चेंज नहीं हुआ है. Do you know the volume of a sphere? 4/3/u. Okay, so new volume, let's call it V dash. 1/64 of original volume V. वॉल्यूम चेंज हो गया मतलब रेडियस चेंज हुआ होगा. 4/3 पाई r dash cube is 1/64 of 4/3 pi r cube. 4/3 pi is gone. Yes, sir. So r dash cube, ध्यान से देखिएगा, is r cube by 64. मुझे क्यूब रूट मांगता है. So r dash is r upon cube root of 64. I think it's a very easy idea. 4 r dash is r by 4. अच्छा, तो अर्थ बड़ा था, उसमें पिचक गया. क्या बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा है? नहीं. So as there is no external torque, as there is no external torque, so do you agree total angular momentum will remain constant? So L1 is equal to L2. L1 is I1 omega 1. L2 is I2 omega 2. I1 is the moment of inertia of the original sphere, of the original earth. I2 is the moment of inertia of the new earth. Okay, दोनों के मास में कोई बदलाव नहीं हुआ. तो I1 is how much? 2/5 mr square. सर अर्थ को सॉलिड स्फीयर दिया. अर्थ सॉलिड ही है ना, हॉलो थोड़ी है यार. हॉलो क्या होता है? अंडा होता है, अंडा. Yes, sir. हॉलो क्या होता है? पिंग पोंग बॉल होता है. हॉलो क्या होता है? फुटबॉल होता है. बट जो तुम्हारा शॉर्टपट का बॉल होता है वो सॉलिड स्फीयर होता है. अर्थ जो होता है वो सॉलिड स्फीयर होता है. उबला हुआ अंडा, बॉइल्ड एग, वो भी सॉलिड स्फीयर होता है. ओके, 2/5 mr dash square. सर ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का खाली काय को रखा? अच्छा, तुमको ओमेगा याद है? ओमेगा, ओमेगा का ओरिजिनल एक्सप्रेशन. डू यू रिमेंबर दिस? ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी. अच्छा, अगर अर्थ पूरा एक दिन में पूरा चक्कर मार लेगा, बराबर है, पूरा एक चक्कर मारो तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? 2 पाई. 2 pi. So for one full chakkar, delta theta is 2 pi. So omega 1 is 2 pi by t. And फिर से एक पूरा चक्कर ही मारना है तो 2 pi by t dash.
ये इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम कि सर ये 2 पाई बाई टी कैसे लाए? ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी फॉर वन रोटेशन फुल रोटेशन डेल्टा थीटा कितना होता है 2 पाई एंड कितना टाइम लगता है वील कॉल इट टाइम पीरियड। तो मैंने डेल्टा थीटा की जगह 2 पाई लगाया दोनों जगह और डेल्टा टी की जगह यहां टी और यहां टी डैश। इज दैट एग्रीएबल पीपल? नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ू, Yes, sir. नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वी आर गुड ओके। तो काटा काटी का माहौल 2 पाई 2 पाई 2 बाई 5 2 बाई 5 यम यम क्योंकि मास सेम है। ओके क्या बचा? आर स्क्वायर बाई टी इज आर डैश स्क्वायर बाई टी डैश। मेरे पास आर डैश है आर बाई 4। मैं टी डैश को पहले ए साइड ले लेता हूं। टी डैश इज टी इंटू आर डैश बाय आर द होल स्क्वायर। हाउ मच इज आर डैश बाय आर? इजंट इट 1/4? एंड टाइम पीरियड कितना है ओरिजिनल अपना 24 आवर्स। 24 बाय 4 का स्क्वायर 16। हाउ मच इज 24 बाय 16? इजंट इट 3/2? एंड 3/2 इज 1.5 hours. Yes. Sir, Yup. Kepler's third law से नहीं हो सकता? केपलर के थर्ड लॉ को तू इसमें कैसे इस्तेमाल कर सकता है बेटा? व्हाट वाज केपलर्स थर्ड लॉ? केपलर्स थर्ड लॉ T upon T dash equals to R. अरे 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 Kepler's third law was the time period for revolution beta revolution of the planet around the sun, and that R was the semi major axis. you know sun से average distance planet का यहां sun कहां आ रहा है बेटा? आ ही नहीं रहा है। दिख रहा है सन कहीं पे? हम तो यहां पे T और R आया ना इससे। हाँ पर उसमें तू यहां पे सिर्फ अर्थ के रोटेशन के बारे में बात कर रहा है और रोटेशन के बारे में बात करने की जगह की वजह से तू अर्थ को ही देखेगा, तू बाकी कुछ नहीं देखेगा। सन वन कुछ नहीं आता बीच में। ओके चेक द आंसर प्लीज। 1.5 hour इज ओके? Yes, sir. Okay, I am looking at number 22, a very practical example, round 1 का number 22 please. Exactly diagrammatic. हम बोर्ड में जो बहुत टाइम करते थे, ओरिजिन पकड़ना, आर बार क्रॉस एफ बार करना, वैसा ही कुछ राउंड 1 का 22 हमसे करवाने की कोशिश कर रहा है। इफ यू आर लुकिंग एट द डायग्राम प्लीज, राउंड 1 का 22, are you looking? Yes, sir. Okay, how do you find it? Some people find the diagrams really bad, जबकि diagram is the key idea people. Diagram है तो सब कुछ है, आंसर आने की गुंजाइश और बढ़ जाती है। बगैर डायग्राम के तो कुछ नहीं होना जहां। ओके ये राउंड 1 का क्या नंबर है? 22 22। पहले डायग्राम बना लेते हैं जी। ये आपका कुछ रेक्टेंगुलरिश आइडिया है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज अ फोर्स, आई थिंक 100 न्यूटन। यहां से 1.25 मीटर है यहां तक और यहां से 0.75 मीटर है यहां तक। ओके क्या पूछा है? ओके a force of 100 Newton is applied perpendicularly to the left edge of the rectangle as shown in the figure. The torque, magnitude and direction produced by the force with respect to an axis perpendicular to the plane of the rectangle at corner A and secondly with respect to a similar axis at corner B are respectively. Okay. मतलब तुमको क्या फाइंड करना है? टॉर्क। टाउ अबाउट पॉइंट ए कितना है, टाउ अबाउट पॉइंट बी कितना है। ओके चलो फिर शुरू करिए। आओ राजा।
सबसे पहला अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ए, मतलब तुम्हारा अब मेन पॉइंट कौन सा हो गया, जो ओरिजिन पॉइंट कहते हैं वो ओरिजिन कौन सा हो गया अब, और ये है आपका एफ बार। भाई टाउ बार एवरीबॉडी नोस इज आर बार क्रॉस एफ बार, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क टाउ अबाउट पॉइंट ए इज आर इंटू एफ साइन 90। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अच्छा साइन 90 क्यों सर, ये फोर्स है, ये आर बार है, ओके। ए से फोर्स का डिस्टेंस कितना है 0.75 एंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 100, तो मेरे को ये मिलता है टाउ ए इज 0.75 इंटू 100 दैट इज 75 न्यूटन मीटर। पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनको डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन कैसे लाएंगे अपने, सर 2 पेन्स के जरिए हम डायरेक्शन ला पाएंगे, पर आज के हाँ, तो ये आ गई हमारी 2 पेन्स, जूने जमाने याद आ गए मेरे को। तो ये ओरिजिन से निकलेगा आर बार, ये निकला तुम्हारा आर बार, एंड ये है आपका एफ बार। क्या ये सही अरेंजमेंट है, ये हेड ये टेल, क्या ये सही अरेंजमेंट है, नहीं, टेल टू टेल होना चाहिए। तो मैं आर बार को थोड़ा सा नीचे लेता हूं, ये हुआ आर बार और ये है एफ बार। आर बार क्रॉस एफ बार कैसा होगा, ये कौन सा है एंटी, इज दिस अंडरस्टैंडेबल। अच्छा अबाउट पॉइंट बी, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू बी, ओके, सेम टू सेम टाउ बी इज आर बी इंटू एफ इंटू साइन 90, क्योंकि अब ये है तुम्हारा ओरिजिन एंड ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इजंट इट 1.25 मीटर, यस सर। फोर्स कितना 100 साइन 90 इज 1, सो टाउ बी इज 125 न्यूटन मीटर। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द डायरेक्शन। अच्छा भाई, अब ओरिजिन ये है बी, फोर्स कैसा है, पहले फोर्स दिखाओ सर, ये तुम्हारा ये खिस्से में डाल देते हैं, ये तुम्हारा फोर्स। सर ये फोर्स बेचारा कहाँ है और ओरिजिन कहाँ है, दोनों को संगे संगे ले आओ ना। हाँ अब ये ठीक है पीपल, ये मैं यहां से चला के इसको ऐसे ले आया, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। ओरिजिन से चल पड़ेगा अपना पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से निकलेगा अपना पोजीशन वेक्टर। ये है तुम्हारा, नीचे बी था ना, तो यहां से निकला ये रहा। इज दिस ओके, ऊपर ले लिया जी। अब ये है आर बार, ये है एफ बार, क्लॉकवाइज हैगा जी। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर, आंसर ढूंढने की कोशिश करो। अबाउट पॉइंट ए 75 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज एंड अबाउट पॉइंट बी 125 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। इज दैट एन अवेलेबल ऑप्शन? Yes, sir, option A. वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ जाते हैं। आई एम लुकिंग एट राउंड 1 का 29। आर यू लुकिंग एट राउंड 1 का 29? यस सर। ऑलराइट, आने दो। डिस्क वाला हो या स्फीयर वाला हो, अपने को तो करने से मतलब है कि नहीं? Okay. I'm sure you all are writing down the data as you are reading the sum, because that is the most preferable idea, writing down the data as you are reading the sum. And that will help you in understanding कि क्या कह रहा है दीवाना और दिल ना किसी से लगाना। 29 क्या चीज है?
फ्लाईव्हील, अरे फ्लाईव्हील मतलब आई एम श्योर यू नो इट्स अ डिस्क, डिस्क है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, बल्ले बल्ले, 3 × 10⁻²² kg मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, ओमेगा दिया हुआ है 4.6 रेडियन पर सेकेंड, गंदा ओमेगा। इफ अ टॉर्क भी दिया हुआ है 6.9 × 10⁻² न्यूटन मीटर रिटार्ड्स द व्हील, देन द टाइम टेकन इन विच द व्हील कम्स टू रेस्ट, टी कितना है जिसमें फाइनल ओमेगा 0, तो इसको ओमेगा 0 लगाते हैं। ओ कैसे करने के, क्या एकदम इजी है? शाबाश शाबाश, तो खड़े खड़े ही ये आंसर आ जाएगा। एंड व्हाट इज अल्फा? ओमेगा माइनस ओमेगा 0, तो टी को लिया ऊपर। भाई आप लोग करना शुरू करो आज, मुझे आज ही चाहिए। आई की वैल्यू 3 × 10⁻², एंड ये 0 माइनस 4.6 अपॉन टाउ, हाउ मच इज टाउ? 6.9 × 10⁻²। ये 10⁻² तो पहले शॉर्ट में ही गया, तो टॉर्क माइनस में है, मतलब वो रिटार्ड करेगा, माइनस आंसर नहीं आ सकता टाइम का, तो हम टाइम को पॉजिटिव ही लेते हैं, क्योंकि टॉर्क रिटार्ड वाला है तो यहां माइनस आ जाएगा, नॉट एन इश्यू एट ऑल। सो 3 × 4.6 डिवाइड बाय 6.9, 4.6 और 6.9 आई थिंक 2.3 से जा रहे हैं दोनों, कैन यू सी? सर 2 सेकंड्स आ गया सर आंसर। हाँ वो तो ठीक है, मैं यहाँ दिया सर। हाँ क्या कर लिया? सर बिना कैलकुलेटर से किया। हाँ तो बिना कैलकुलेटर ही करना है, जेई नीट में कैलकुलेटर नहीं होता बेटा, जो भी होता है इंसानी दिमाग होता है। ओके, आंसर 2 सेकंड है, देखें कृपया। एंड सेम टू सेम टाइप का है नंबर 33। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा उसमें ऑफ कोर्स, बट फिर से एक फ्लाईव्हील ही दिख रहा है मेरे को। फ्लाईव्हील डिस्क है ये, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ है, क्या है, 0.4 kg मीटर स्क्वायर, एंड रेडियस 0.2 मीटर 0.2 मीटर है, is free to rotate about a central axis. If a string is wrapped around it, अरे मांझा ही है और फिरकी है, and is pulled with a force of 10 Newton, force कितना है 10 Newton, then its angular velocity omega after 4 seconds is, you know this sum reminds me of PK. Sir, why does it remind you of PK? Because अभी PK कह रही थी टॉर्क में इतने सारे फॉर्मूला, इतने सारे फॉर्मूला। अरे PK यू आर देयर? यस सर। कितने फॉर्मूला है टॉर्क के? 2। कौन से? Tau is equal to I alpha and tau is equal to RS I theta. इमेजिन दोनों को इसी में लगाना है। कैन यू इमेजिन दैट? ये तुम्हारा चरखा, ये ऐसो घूमेगो, और यो है फोर्स 10 न्यूटन का, और ये है तुम्हारा रेडियस। तो वी नो, सॉरी टेक्स्ट बुक का ही है ना सर। क्या बात है, क्या बात है, आओ फिर कर ले। आई अल्फा इज आर एफ साइन 90, आई कितना है 0.4, यहां से मुझे अल्फा मिलेगा, रेडियस कितना है 0.2 into 10, sin 90 is 1, so 0.2 2s are, so alpha is 5 radian per second square, and alpha is omega minus omega 0 by t, omega 0 तो 0 था, omega t कितना है 4 सेकेंड, आंसर 20 रेडियन पर सेकेंड है क्या, चेक कीजिए। यस सर। इज दिस अ वेरी लवली सम? बढ़िया, दोनों टॉर्क के दोनों फॉर्मूला का बढ़िया इस्तेमाल इस सम में हुआ है। एंड नाउ आई एम लुकिंग एट नंबर एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 देख रहा हूं मैं, हमारे पास टाइम है तो हम एग्जाम्पल 8 देख सकते हैं। एग्जाम्पल 8 देख रहे हैं। एग्जाम्पल 8 says a particle of mass m is equal to 5 unit, m is 5 unit, is moving with a uniform speed v is equal to 3√2 unit, and in the xy plane along the line y is equal to
x प्लस 4, ये लाइन का इक्वेशन है. द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, L इज हाउ मच? अबाउट ओरिजिन. ओके भाई, सबसे पहले तो लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी, यू नो, एक्स वाई प्लेन में इसको प्लॉट करना पड़ेगा. एक काम करते हैं, बेस्ट थिंग इज व्हाट, फॉर द लाइन y इज x प्लस 4. अच्छा, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना मिलेगा? 0 प्लस 4 विच इज 4. मीटर नहीं लिखते, यूनिट ही लिखते. अच्छा, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x कितना मिलता है? माइनस अच्छा, तो इस लाइन के द टू मेन पॉइंट्स आर x0 y4, तो 0,4 एंड दूसरा -4,0. इन दो पॉइंट्स को यूज करके क्या आप लाइन प्लॉट कर सकते हैं? हैं महाराज? यस सर. अच्छा जी. मेरा पहला पॉइंट कौन सा है? 0,4. ये ओरिजिन है और ये 4, तो दिस इज 0,4. एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है? -4,0, तो x पे -4. एंड इन दोनों को छेद करती हुई मेरी ये लाइन, ओ शिट, गंदी पीपी लाइन है ये तो. इतनी गंदी लाइन तो जिंदगी में नहीं मारी हमने. हाँ, पहले लाइन मारने का, फिर पॉइंट मारने का. चलो, मस्त लाइन है ये. तो तुम्हारा पार्टिकल जो है ना, इसी लाइन पे जा रहा है. सो ये सपोज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी ये है. सो इजंट दिस द लाइन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, लाइन ऑफ एक्शन? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम. एंड ये रहा ओरिजिन. पीपल, डू यू अंडरस्टैंड? तुमको इसका ये पता है एंगुलर मोमेंटम का? इक्वेशन जानते होंगे ना? L इज इक्वल टू आर पी. वेरी गुड. एंड P इज व्हाट? mv. सर थीटा किधर है? ये रहा थीटा. थीटा. कैन समवन फाइंड मी साइन थीटा फ्रॉम दिस मच? सर साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, इतना 4 है, ये भी 4 है. एनीबॉडी? 4√2 हाइपोटेनियस आ जाएगा. कितना है? उसके बाद sin थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन हाइपो. सो इजंट दिस 4? अच्छा, 4/4√2. ये 4 समझ में आया? इतना लेंथ 4 है, इतना लेंथ 4 है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस इज 4√2. वाह, वो तो है ही. वेरी गुड. पर मुझे थीटा नहीं चाहिए, मुझे साइन थीटा चाहिए. तो आर कितना? आर 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 4, मास 5, वेलोसिटी 3√2, एंड साइन थीटा इज 4/4√2. चलो भाई, काटा काटी का गेम. खट 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 खट. 4 5s are 20, 23s are 60. Is the answer 60 unit? यस सर. बरोबर. तो थीटा, पहले मुझे पता चला कि साइन थीटा लेने का, तो साइन थीटा पहले मैंने 4 फाइंड किया, फिर ये 4 है, ये 4 का हाइपोटेन्यूज 4√2. साइन थीटा इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, 4/4√2 करके आंसर ला दिया है. दैट इज 60 यूनिट. नाउ आई एम लुकिंग एट राउंड 1 का 43 प्लीज. वेरी पाथ ब्रेकिंग सम. राउंड 1 का 43. आई होप यू आर लुकिंग एट इट. राउंड 1 का 43. कुछ रॉड वॉड के बारे में बात चली है. क्या कहता है? ओके, राउंड 1 का 43. Okay, people, stay with me. What does it say?
a thin uniform rod AB of mass M and length L is hinged at one end A to the level floor. ये तुम्हारा लेवल फ्लोर और एक डंडा यहां पे रखा हुआ है. ये है उसका एंड ए, दिस इज एंड बी, दिस इज लेंथ एल एंड रॉड का मास है एम. इनिशियली इट स्टैंड्स वर्टिकली एंड इज अलाउड टू फॉल. ठप ऐसा मारा तो ये रॉड ऐसा गिरेगा एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली टू द फ्लोर इन द वर्टिकल प्लेन. ये वर्टिकल प्लेन में द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट एंड्स बी स्ट्राइक्स द फ्लोर. ये बी जब ठप करके आया कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा उसका ये मांगा है. कैसे करेंगे जी? सर जी L is equal to I ओमेगा करके करे तो उससे क्या फायदा होगा? भाई एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. ये बॉडी यहां पे है, इसके पास फिलहाल कौन से टाइप की एनर्जी है? पोटेंशियल और जब मैं छोड़ दूं तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी यहां आते आते किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक अच्छा, तो ये रॉड खड़ा है, खड़ी हुई परिस्थिति में इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, फिर टू धप करके गिरेगा, ये सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में? काइनेटिक एनर्जी. सो एट पॉइंट एट इनिशियल पोजीशन rod has only potential energy and at final position rod has only. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? भाई पोटेंशियल एनर्जी प्लीज आप मेरे को प्लीज -GMEM/R मत बोल देना. U1 mgh. Hey, what is h? L L. You sure? Yes. ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है एंड इट इज एट अ हाइट h above the reference level. What is the potential energy of this body? MGH. What is h? मैंने खास Body from ground. distance between the Center of mass. the height of the center. खास इसलिए ये पॉइंट बनाया मैंने. The height of the center of mass of the body from the reference level. Look at this rod. Where do you think its center of mass would be? center And from the reference level, how high is the center of mass? L/2. My God. Here h, let me write that down because many people tend to make that mistake and it is the most disastrous mistake anybody can ever make. Here h, height of the center of mass of the rod from the reference level. So U1 is mg L/2, equation number 1. And final kinetic energy. Rotate हुआ ना? Is there any linear motion? No, only rotation. And what is rotational kinetic energy? I ओमेगा स्क्वायर. हाफ किधर गया? सर आप आपने लिख दिया था. अच्छा ऐसा किया. Now by the law of conservation of energy, U1 is K2, so mgL/2 is half I omega square. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा हूं.
आई क्या लूं? सेंटर ऑफ अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब हमने रॉड किया था तो चार चार मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे, तो कंफ्यूजन का यही कारण है कि कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूं. ml² by 12, ml² by 3, ml² 0, क्या लूं? ml² by 12. डू यू रिमेंबर ml² by 12 एक्चुअली था क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड about an axis passing through the center of mass. But if you notice, ये बॉडी, ये जो रॉड रोटेट कर रहा है, about which point is the rod rotating? Point A. ऐसा था, टुक ऐसा हो गया. Can you see the axis is passing through point A? And if the axis is passing through point A, isn't the axis passing through one end of the rod? Yes, yes. And what would be the moment of inertia about any end of the rod? ml² by 3. 3. Yes sir. Yes. क्योंकि कौन सा एक्सिस है, हमको यही फाइंड करना है. ये है वो एक्सिस, एंड दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू एन एंड ऑफ द रॉड. एज अ रिजल्ट हाफ ml² by 3 वर्क्स आउट. क्या क्या कटेगा? m कटना है, 2 कटेगा, और कुछ एक l कटेगा, और बाकी ω² को ऐसे ही रखते हुए बाकी सबको यहां ले आओ. 3 ऊपर गया, 3g by l. Oh wow, I think I have an answer. Omega is root of 3g by l. Check that please. Is it there? Is root of 3g by l a valid option? Yes, sir. Very well, very well. Well, कट टू कट टाइम पे हमने कंप्लीट किया है. आज का एजेंडा मैंने कंप्लीट किया. टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम वगैरह सब आ गया. इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll be looking at rotation as well as translation, body rolling without slipping from an inclined plane, and we shall be able to end this chapter. So till that time, you keep doing these sums and you stay good. Thank you so much. Bye bye.